Assalamu alaikum students and welcome to my channel Still Learning. It's all about learning. Class 9th Biology Chapter number 1 Introduction to Biology Lecture number 1. So let's just jump into the video. Introduction to Biology, that what is biology? Biology क्या है? The word biology has been derived from two Greek words bios and logos. बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगस का मतलब है स्टडी. हेंस बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दैट इट इज द इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, देन व्हाट वुड यू से? बिकॉज इफ बायोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द स्टडी ऑफ लाइफ, देन व्हाई डू वी स्टडी वाटर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी? और अगर ऐसा ही है तो हम बायोलॉजी के अंदर प्रोटीन को स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज द कंप्लीट डेफिनेशन इज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ and things related to life. बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर उस चीज़ को स्टडी करते हैं जो लाइफ के साथ रिलेट करती है. अगर प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइफ. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी एक बहुत ही एक्सटेंडेड सब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड फील्ड है, जिसकी वजह से इट हैज़ मैनी कवर अप्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. एंड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्कोप, biologists had divided the biology into three main divisions: zoology, botany and microbiology. Let's go and study these three divisions in brief. Zoology. Zoology has been derived from a Greek word zoon meaning animals. Zoology एक ग्रीक वर्ड zoon से derive हुआ है जिसका मतलब है animals. Hence zoology is the study of animals. Zoology के अंदर हम animals को study करते हैं. Now let's see what is botany. Botany. The word botany has been derived from a Greek word butane meaning plants. बॉटनी वर्ड ग्रीक वर्ड ब्यूटेन से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है प्लांट्स. हेंस बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स. बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी. द वर्ड माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक और स्मॉल. माइक्रो वर्ड का मतलब है माइक्रोस्कोपिक या स्मॉल. हेंस माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. Now you will say, what are microbes? So microbes are those living organisms which we can see through a microscope. Microbes उन living organisms को कहा जाता है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकें, and we can't see those living organisms with our naked eye. Clear with the division microbiology? Now let's move further into this chapter. Branches of biology. To study the different aspects of life, divisions of biology had been further divided into the branches, which are morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, embryology, paleontology, environmental biology, sociobiology, parasitology, biotechnology, pharmacology, immunology, and entomology. We will study these branches one by one, so let's move on to the first branch, which is morphology. Morphology. The word morphology has been derived from two words, morph plus logy. Morph का मतलब है form, shape. किसी भी living organism की ज़ाहिरी शक्ल, उसका shape, उसका form. And logy का मतलब है study. So, morphology is the branch of biology that deals with the form and structure of living organisms. Living organisms के structure को, उसकी external form को, उसकी ज़ाहिरी शक्ल को पढ़ने को हम morphology कहते हैं. Again, the branch of biology that deals with the form and structure of living organisms is known as morphology. I hope you're clear with morphology, so now let's move on to the next branch. Anatomy. The word anatomy is derived from the word anatomin, जिसका मतलब है dissect. So it is defined as the branch of biology that deals with the study of internal structure of living organisms. ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं.
एनाटमी वर्ड का मतलब है डाइसेक्ट करना, उसको कट करना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कट कर कर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज नेम्ड एज एनाटमी। द नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। द वर्ड हिस्टोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हिस्टोस, जिसकी मायने है टिश्यूज। सो सिंपली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नाउ हम सबको पता है कि टिश्यूज आर स्टडीड ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, सो हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच, सेल बायोलॉजी। Cell biology deals with the study of cells and cell organelles. Cell biology के अंदर हम cells को study करते हैं which are the basic unit of life, और उन्हीं cells के अंदर present organs को study करते हैं जिन्हें हम cell organelles कहते हैं. It also deals with the study of cell division. इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि सेल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेल की क्या टाइप्स हैं, इनको भी हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज इट इज द स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. द सेकंड पॉइंट इज इट ऑल्सो डील्स विद सेल डिवीजन. नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये जितने भी हिस्से हैं, उन सब का कोई ना कोई फंक्शन होता है और उन फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच, जेनेटिक्स. द वर्ड जेनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, जिसकी मायने है डेसेंट. बेसिकली जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? I'll give you a quick introduction about heredity. Heredity को जानने के लिए you have to know about DNA, which is deoxyribonucleic acid. ये हमारी बॉडी में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम DNA कहते हैं, और इसके अंदर हमारी बॉडी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है. द पार्ट और सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन. DNA के एक पार्ट को, एक हिस्से को या एक सेगमेंट को जीन कहा जाता है, विच इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अगर कोई आपसे पूछे कि हेरिडिटी का बेसिक और फंक्शनल यूनिट क्या है, सो यू विल से जीन इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन में हमारे पास हमारी बॉडी के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. क्लियर? जीन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी कलर, हमारा आई कलर, हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर टेक्सचर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जीन्स में प्रेजेंट होती है कैरेक्टर्स की फॉर्म में. एंड द ट्रांसफरिंग ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. और इन कैरेक्टर्स के ट्रांसफर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक हम हेरिडिटी कहते हैं. कि हमारे पास पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल उनका आई कलर क्या है, उनका हेयर टेक्सचर क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. हमें पता है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं थ्रू DNA. सो बेसिकली इट्स हेरिडिटी, और इसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में कि किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. तो इन सब को हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में. आई होप यू आर प्रीटी क्लियर विद जेनेटिक्स. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रांच, एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एक एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, उसकी डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर. For example, here you can see a fetal growth chart of a human baby reproduction, जिसमें पहला स्टेज एम्ब्रियो का है. अब ये एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होगा इन द पीरियड ऑफ 9 months, इस सारी डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ब्रांच, टेक्सोनॉमी. What is taxonomy? The study of classification of living organisms into groups and subgroups is known as taxonomy. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी ही स्पीशीज इस दुनिया में प्रेजेंट हैं और उन सब स्पीशीज को एक ग्रुप के अंदर स्टडी करना इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया गया है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, जिनको स्टडी किया जाता है टेक्सोनॉमी में.
टेक्सोनॉमी का एक स्पेसिफाइड टॉपिक क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में प्रेजेंट है, जिसमें आप इसको बेसिक लेवल पर स्टडी करोगे। द नेक्स्ट ब्रांच इज पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। कितने ही ऐसे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं जो कि पास्ट लाइफ में प्रेजेंट थे, लेकिन अब उनका नामो निशान भी नहीं मिलता, लेकिन उनके कुछ ज़रात, कुछ रिमेन्स मिलते हैं मिट्टी में, पत्थरों में, जिन्हें हमें कहा जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स आर प्री हिस्टोरिक रिमेन्स, जिनकी मदद से हम पास्ट लाइफ को स्टडी करते हैं और इसको स्टडी किया जाता है पैलिएंटोलॉजी में। क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ब्रांच, environmental biology. Environmental biology is the study of the interactions between living organisms and their environment. Environmental biology के अंदर हम living organisms का उनके environment के साथ interaction study करते हैं. Basically, it is the relationship of living organisms with the non-living factors of the environment. कि environment के जो non-living factors हैं, उनका क्या effect है living factors पे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ लाइफ को स्टडी नहीं करते, बल्कि लाइफ के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेट करती हैं, जितनी भी चीज़ें लाइफ पर इफेक्ट करती हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हमारी लिविंग फैक्टर्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट करते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। नाउ सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सोशो बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है सोशो बायोलॉजी के अंदर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से बिहेवियर है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ किस तरह का बिहेवियर है, या एक ह्यूमन का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह का बिहेवियर है, उसे स्टडी किया जाता है सोशो बायोलॉजी के अंदर। लेट्स सी द नेक्स्ट ब्रांच, पैरासिटोलॉजी। व्हाट इज पैरासिटोलॉजी? पैरासिटोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। बट व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स बाय मेकिंग देम होस्ट, इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में से अपना खाना हासिल करें, उन्हें ज़बरदस्ती का मेज़बान बनाकर और ख़ुद बिन बुलाया मेहमान बनकर, और उसके बदले उन्हें नुकसान पहुंचाए। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मस्किटो, जो ह्यूमंस पर अटैक करता है, उनका ब्लड सक करता है और ब्लड सक करने के बाद उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपना खाना हासिल करता है। और इस तरह के पैरासाइट्स को किस में स्टडी किया जाता है? पैरासिटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। I hope you are pretty clear with parasitology. So now let's move on to the next branch, biotechnology. Biotechnology is the branch of biology that deals with the uses of technology for the manipulation of genes in the field of biology for the welfare of mankind. बायोटेक्नोलॉजी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इंसानों के फ़ायदे के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स में तब्दीली की जाए, उसमें मैनिपुलेशन की जाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसमें या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या अगर बन जाए तो वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन डीएनए जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में फिट किया जाता है, और उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, जहां वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। कॉपीज़ बनाने के बाद इंसुलिन प्रोड्यूस करके ह्यूमन पेशेंट को दिया जाता है, जो कि डायबिटीज़ का पेशेंट है। इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इंसानों के फ़ायदे के लिए, जिसमें हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं। I hope you are clear with biotechnology. So now let's move on to the next branch, pharmacology. It deals with the study of drugs and their effects on the human body. फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और ड्रग्स के इंसानी जिस्म पे क्या असरात हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो इंसानी जिस्म के लिए बेनिफिशियल हों, उनको हम फार्मेकोलॉजी में स्टडी करते हैं। The next branch is entomology. Entomology is simply the study of insects. Insects को study किया जाता है entomology में. Clear? Now let's see the last and the final branch. The last branch is immunology. Immunology is simply the study of the immune system.
इम्यूनोलॉजी में हम अपने इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं. एज वी ऑल नो दैट इम्यून सिस्टम इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन वायरसेस, डिसीजेस एंड बैक्टीरियाज. इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है क्योंकि ये हमारी बॉडी को वायरसेस, बैक्टीरियाज और बीमारियों से बचाता है. जितना स्ट्रांग होगा हमारा इम्यून सिस्टम उतने ही ज़्यादा हम प्रोटेक्ट रहेंगे अगेंस्ट डिसीजेस. सो दैट वाज द लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. So that was it for today's lecture. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for all the upcoming updates. See you in the next lecture. Allah Hafiz.